With Gordon model, subject strategic corporate finance. Topic Gordon model, dividend policies, dividend decisions, calculating the value of share with Gordon model. Data will be given in the question, dividend of last year, growth rate in the dividend in the next year, and you have to calculate the CAPM, cost of equity, that is expected return, and you have to calculate the NSE. You have to compare intrinsic value with the market price. This is fundamental value which we have calculated P0. According to investor, this should be the price. According to investor, the price should be 60, but in the market it is 36. So it is very below. Okay, it is very low. When it is low, it is called as undervalued. 60 होना चाहिए प्राइस, लेकिन 36 है, तो आपके लिए अच्छा है ना. आप अगर बाय करते हो तो 36 में बाय करोगे. नेक्स्ट हम करते हैं, ये तो कल का रिवीजन हो गया हमारा. हमने देखा मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों को हमने कंपेयर किया, और डिसीजन क्या हुआ, वी विल बाय दिस शेयर बिकॉज इट इज अंडर वैल्यूड. आपको जो चीज 60 की होनी चाहिए 36 में अवेलेबल है, तो 36 में हम लोग इसको बाय करेंगे. ये 2 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स. ठीक है. Janaki is foreseeing a growth of 12% per annum in the next 2 years. The growth rate is likely to fall to 10%. Likely to fall to 10% for third year and fourth year. After that, growth rate is expected to stabilize at 8% per annum. If the last dividend paid was ₹2 per share and the investor's required rate of return is 16%. E of R दिया है, investor का return, expectation return is 16%. Find out the intrinsic value per share. You may use the following table. This is the discounting factor for future dividends. We have to convert the future value into present value. Now, as you know, the growth rate in the 2 years is 12%. First 2 years, growth rate is 12%. Next 2 years, third and fourth year, growth rate is 10%. After that, growth rate is expected to stabilize at 8%. That means from 5th year
द ग्रोथ रेट विल बी स्टेबिलाइज्ड, हमेशा के लिए वो 8% से डिविडेंड ग्रो होगा। चलिए फर्स्ट 2 इयर्स का निकाल लेते हैं। फर्स्ट 2 इयर्स का डिविडेंड है 2, लास्ट ईयर डिविडेंड इज 2 rupees. ओके, इफ द लास्ट डिविडेंड पेड वाज ₹2 per share, यहाँ पे लिखा है थर्ड लाइन, इफ द लास्ट डिविडेंड पेड वाज ₹2 per share, 2 लेना है, उसमें ग्रोथ ऐड करनी है, नेक्स्ट ईयर में 12% ग्रोथ है, उसके नेक्स्ट ईयर भी 12% ग्रोथ है, तो 2 into 1.012 raised to 1 फर्स्ट ईयर इंटू 0.86, ये क्या है 0.86, ये फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू है। अब आपको पता है ये जो कंपाउंडिंग किया हमने, ये फर्स्ट ईयर की वैल्यू है। अभी करंट ईयर में अगर फर्स्ट ईयर की वैल्यू है तो ये फ्यूचर वैल्यू हुई। फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इस फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना है। 1 plus 0.12 is the growth, 1 plus g, याद है d0 into 1 plus g, d0 क्या है 2, d0 is 2 into 1 plus g, growth rate, 1 plus 0.12 growth rate raised to 1, ये फर्स्ट ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर को 0th ईयर पे लाने के लिए ये जो वैल्यू आएगी, इसको फर्स्ट ईयर की वैल्यू को 2.24 को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, यानी इस फैक्टर पीवी फैक्टर से 0.86 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ईयर की जो प्रेजेंट वैल्यू करनी है कन्वर्ट, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 1.93। नेक्स्ट ईयर में 2 into 1.12 raised to 2, ये सेकेंड ईयर का कंपाउंडिंग हो गया। सेकेंड ईयर में ग्रोथ होगा 1.12 फर्स्ट ईयर एंड 1.12 सेकेंड ईयर, सो raised to 2 because there is same return। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, 2.24 लिख सकते हो इसके जगह पे, यहाँ पर ये देखिए ये वाला 2.24 लिख के 1.12 नॉर्मल कर सकते हो। अगर आप 2 लिख रहे हो तो 2 into 1.12 raised to 2 into प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.74 सेकेंड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.51 into 0.74, that is 1.86। 3.79 is the present value of dividend stream for first 2 years. Next, present value of dividend stream for the next 2 years. First 2 years हो गया, अभी थर्ड और फोर्थ ईयर का करेंगे। नेक्स्ट 2 years यानी थर्ड एंड फोर्थ ईयर। चलिए 2.51 कहाँ से आया, देखो यहाँ पे 2.51 दिख रहा है, ये 2.51 सेकेंड ईयर का डिविडेंड लेना है आपको, D2 लेना है, D2 से D3 बनाना है। D2 is dividend at second year is 2.51, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में 2.51। नेक्स्ट 2.51 सेकेंड ईयर की डिविडेंड में ग्रोथ होगा 10% से। आपको पता है यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ईयर में 10% से डिविडेंड ग्रो हो रहा है, तो 1 plus 0.10 raised to 1 थर्ड ईयर का इंटू थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.64, यानी थर्ड ईयर की वैल्यू आने के बाद इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट थर्ड ईयर की वैल्यू में अगर आपको पता है कि थर्ड और फोर्थ ईयर में 10% की ग्रोथ है, तो थर्ड और फोर्थ ईयर की साथ में आप कंपाउंडिंग करके निकाल सकते हो। 1 plus 0.10 raised to 2, this is 1 plus growth rate raised to 2 years into 0.55 फोर्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। आंसर इज 3.44। थर्ड और फोर्थ ईयर के डिविडेंड है 3.44, फर्स्ट और सेकेंड ईयर का 3.79। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू करने के बाद इसको हमने ऐड कर दिया। फ्रॉम द फिफ्थ ईयर उन्होंने बोला है कि धीरे धीरे ग्रोथ रेट 8% पे स्टेबिलाईज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमें गॉर्डन मॉडल का इस्तेमाल करना है। गॉर्डन मॉडल में हम नेक्स्ट ईयर की डिविडेंड को लेते हैं और उसके पहले वाले ईयर की प्राइस निकालते हैं। आपको पता है P0 और D1
P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस G। अब तक हमने यही सीखा था, P0 इज इक्वल्स टू D1, यानी फर्स्ट ईयर का डेटा लोगे तो करंट ईयर की इंफॉर्मेशन निकलेगी। यहाँ पे फिफ्थ ईयर का डिविडेंड लेकर प्राइस ऑफ फोर्थ ईयर निकाल सकते हैं। डिवाइड बाय KE माइनस G। KE is cost of equity, that is 16% rate of return required by our investors, यानी 17 लेना है यहाँ पर, सॉरी 16 लेना है यहाँ पर, 16 0.16। अब D5 निकालने के लिए, फिफ्थ ईयर का डिविडेंड निकालने के लिए फोर्थ ईयर का डिविडेंड लेना है, ग्रोथ रेट प्लस करनी है 1 प्लस G, 3.04। फोर्थ ईयर का डिविडेंड है 3.04, मैंने यहाँ पे बोल्ड करके रखा है। फोर्थ ईयर का डिविडेंड लेकर उसमें ग्रोथ रेट ऐड किया 1 प्लस 0.08। उन्होंने बोला था फिफ्थ ईयर से 8% डिविडेंड ग्रो होगा, तो 3.04 इंटू 1.08 is equals to 3.28. P4 is equals to 3.28 divide by 0.16 minus 0.08 KE minus G 41। प्राइस एट फोर्थ ईयर इज, फोर्थ ईयर की प्राइस है, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। P0 is equals to P4 और PV और 16% ऑफ फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर की प्राइस को P0 में फ्यूचर वैल्यू ऑफ फोर्थ ईयर वी विल कन्वर्ट टू करंट ईयर, दैट इज यूजिंग द फैक्टर 0.55। 22.55 इज द प्रेजेंट वैल्यू। फोर्थ ईयर की प्राइस को जीरोथ ईयर पर हम लेके आ गए। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे है, थर्ड और फोर्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू सेकंड में है, और यहाँ पर आप प्रेजेंट वैल्यू P0 भी निकाल चुके हैं हम 41। इन तीनों को प्लस करके, सॉरी 22.55, इन तीनों को प्लस करके हम प्रेजेंट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ जॉनकी लिमिटेड का निकाल सकते हैं। दिस शुड बी द प्राइस एट विच you can purchase the share.